Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are taking a look at a social science-based RC passage. This is also a very common genre when it comes to CAT passages, along with natural sciences, political sciences. We often get a social science-based RC passage. That's why I've selected this passage and made this video solution for you. I would recommend that you pause the video here, read the passage. Of course, I'll be putting the timestamps for the questions in the description box also. Go to those timestamps, solve the questions on your own first, and then come back for the explanation. Okay, then let's start with what the passage says. Typical social science history type passage, but we are not discussing a specific event that may have happened in history. That those kinds of passages are generally not found in CAT exam. जो भी सोशल साइंस टॉपिक आपके सामने आएगा, a lot of times an idea, a concept might be getting discussed by the author of the write-up wherever the RC passage has been sourced from. Okay, so in this case idea जो discuss हो रही है, it is about secular life and religion वाला. So for this you have to understand just 2-3 words in the passage. I have not made a proper glossary for this because a very few words. First of all, you should know what the word secular actually means. एकदम आसान भाषा में अगर इसको इंटरप्रेट करने जाए, इट मीन्स डिसएसोसिएटेड फ्रॉम रिलीजन, या फिर आसान भाषा में, थोड़ी क्रूड और भाषा में, डिवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजन. मतलब किसी चीज को सेक्युलर एस्पेक्ट से देखना, सेक्युलर तरीके से हैंडल करना, मतलब आप उसमें रिलीजन वाला कोई भी एस्पेक्ट इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो. इफ वॉट एवर यू आर डीलिंग विथ, वॉट एवर यू आर डिस्कसिंग हैज एनी काइंड ऑफ एलिमेंट ऑफ रिलीजन कमिंग इन, तो उसको हटाकर आप कोशिश करेंगे आगे बढ़ने का, उसको देखने का. दैट इज कॉल्ड एज बीइंग सेक्युलर. नाउ इफ यू आर अ रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर, you might be coming across this word a lot in political terms, actually political perspective. बट इस वर्ड का फंडामेंटली मीनिंग यही है, रिलीजन से हटकर. ओके, एंड अनदर थिंग दैट यू शुड नो इज दिस वर्ड एनलाइटनमेंट एरा. एक्चुअली वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है ये, वेस्टर्न कल्चर के ऊपर एप्लीकेबल है, इंडियन कल्चर पे नहीं है. द टाइम पीरियड ऑफ 17th and 18th century in the Western societies, when a lot of new ideas were coming to the fore, a lot of progress was being made in science, technology, industry, and all of this was a strong departure from the European or from the previous Western ideas. इसके पहले क्या होता था वेस्टर्न कंट्रीज में, रिलीजन का, चर्च का, पोप का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था पूरी सोसाइटी पे. बट ऑफ कोर्स रेनेसांस केम, science and technology started progressing. Okay, we have all heard of industrial revolution also taking place in the 18th century and all. तो तब एक थॉट प्रोसेस सर्कुलेट होने लगी वेस्टर्न सोसाइटी में कि यार धर्म को मत देखो, बहुत हो गया. रिलीजन 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 डज नॉट हैव आंसर्स फॉर मैनकाइंड्स प्रोग्रेस. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न थेरीज विच आर डिवोर्स फ्रॉम रिलीजन, दे होल्ड आंसर्स फॉर अ प्रोग्रेस फ्रॉम. ऐसा एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग thought process, एक thread took grip in Western societies, and it is often referred to as the Enlightenment era, a birth of a new logic and all that happened. तो उसी के अराउंड पूरे पैसेज में डिस्कशन है. The author has actually taken a very clear, very unambiguous stand regarding this discussion. और ऐसे passages पढ़ते वक्त you should be actually able to visualize the author standing on one side and maybe criticizing the opposite side. So in my mind, what was happening is something like this. I would like to draw a pictograph like this, but the author is standing over here. Okay, this is team religion. Of course, he is pro religion. passage के narrative से हमें समझ जाएगा. And this is secularism या फिर secular thought. And the author is like directing all his comments to these opposite side and asking a lot of hard, tough questions. So you have to visualize the author standing in front of you, making accusations, making criticisms very passionately, and then you'll be able to understand कि अच्छा सामने वाला क्या चीज है और ऑथर का क्या ओपिनियन है. थैंकफुली दूसरे रिसर्चर्स, दूसरे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन कहीं पे नहीं है पैसेज में. अदरवाइज वी ऑफन सी examples of those happening now and there, that 2-3 different guys from 2-3 different arenas might be coming in
और उनके ओपिनियंस भी दिए जाते हैं. दैट मेक्स द जॉब अ बिट मोर डिफिकल्ट. हियर दैट इज नॉट द केस. ऑथर इज ओनली putting out his ideas, his thought process one after the other. So let's go take a look what the author says here. He says that 3000 साल से ज्यादा human beings have put in their best resources, mental resources, or ability to create change in the world. In which spectrum, in which field of life? The spiritual and the religious. चलो मान लिया डैट ये जो इन्वेस्टमेंट किया, जो प्रोग्रेस किया रिलीजन में, स्पिरिचुअलिटी में, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म. ओके, maybe sometimes we made rapid progress, maybe sometimes not so good thing happen, then once again a time period of rapid progress coming in. तो ऐसा नहीं है that this progress was uniformly wise or uniformly creative. और there is saying ठीक है, थोड़ा सा stop and go type arrangement भी हो सकता है, but it has not been forgettable either. मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप भुला दो हमारे अचीवमेंट्स जो हमने स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट में प्रोग्रेस किया है. 3000 साल तक उसमें इन्वेस्टमेंट है मैनकाइंड का. डज नॉट मीन कि हम भूल जाए वो सब कुछ. बट ऑन द अदर हैंड व्हाट इज हैपनिंग, ऑथर इज सेइंग कि आप सेक्युलर लाइफ को देखो. मतलब कि अ थॉट प्रोसेस, अ वे ऑफ लिविंग विच इज डिवोर्स फ्रॉम रिलीजन. मतलब ऊपर जो डिस्कस किया है 3000 ईयर्स वाला, उसका अपोजिट स्पेक्ट्रम ऑन द अदर हैंड, इट इज हैज बीन रिलेटिवली रीसेंट. ये एक नया नया फिनोमेनन है, ऑथर इज सेइंग. It has also been very creative, immensely creative, author is confessing here, but it has been spectacularly destructive too. Okay, so author is started off with his criticism here, starts with a genuine appreciation. Yes, it has been creative, progress दिलाया है mankind को secular thought ने, लेकिन बहुत destruction भी cause किया. Okay, and he is then making a very straightforward statement from his end कि देखो सेकेंड सेट ऑफ अचीवमेंट, मतलब सेक्युलर लाइफ ने जो कुछ अचीव करके दिखाया ना आपको, इट कैन नेवर कंपेयर टू द प्रोग्रेस मेड इन द 3000 ईयर्स ऑफ स्पीयर ऑफ रिलीजन. तो ऑथर का स्टैंड इमेजिन करो यहाँ पे, कितना अनएम्बिगुअस, कितना क्लियर, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है. दैट यू हैव 3000 ईयर्स और मोर देन 3000 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस हियर, एंड ऑन द अदर हैंड सेक्युलर थॉट प्रोसेस इज वेरी रिसेंट. एंड इतने छोटे टाइम में ठीक है इसने कुछ अच्छी चीजें करके बताई है, बट इट हैज ऑल्सो कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. सो ऑन अ बैलेंस, वट एवर इज सेक्युलर थॉट का अचीवमेंट, प्रोग्रेस, नो वेयर स्टैंड इन कंपेरिजन टू रिलीजन में हमारा प्रोग्रेस. दिस इज वॉट ऑथर्स स्टैंड इज. देन सेकेंड पैराग्राफ का बहुत सारा पार्ट इज डेडिकेटेड टू आस्किंग रेटोरिकल क्वेश्चंस टू द रीडर. रेटोरिकल क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पे आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है रीडर से. ओके, द ऑथर हैज टू रीड थोड़ा सा इन बिटवीन द लाइंस, अप्लाई थोड़ा सा लॉजिक खुद का, एंड देन ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये क्वेश्चन ना सिर्फ ड्रामा क्रिएट करने के लिए है. ऑथर आपसे सवाल का जवाब नहीं मांग रहा, उसके मन में ऑलरेडी एक आइडिया है, वो बस ड्रामाटिक तरीके से आपके सामने एक सवाल की तरह आपके सामने वो बात रखता है खुद की. व्हाट इज ही सेइंग इन द सेकंड पैरा इज, हमारे ये 3000 साल के अचीवमेंट क्या हम अबैंडन कर दें ऐसे ही? एनलाइटनमेंट वाला वर्ल्ड आपको बोल रहा है इसीलिए. हाउ कैन वी वाइप क्लीन, हाउ कैन वी फॉरगेट बिफोर दिस एनलाइटनमेंट वर्ल्ड के पहले का अचीवमेंट हमारा? मतलब when this secular thought arrived on the horizon in the 17th 18th century enlightenment world. ओके, इन लोगों ने आने के पहले, मतलब इतने सदियों का, इतने 3000 साल का हमारा विजडम, हमारा प्रोग्रेस कैसे भूल जाए, क्यों बाईपास करे? जस्ट बिकॉज दिस न्यू थॉट प्रोसेस, दिस सेक्युलर थॉट इज टेलिंग यू टू, हेल नो. एंड अदर सेज द आंसर इज नो. तो चलो मैं अब आपके सामने एक और सवाल रखता हूँ. हाउ डू वी एक्नॉलेज विद इन आवरसेल्फ वो रिलीजियस एस्पेक्ट हमारे अंदर का जिसने हमें इतना सारा प्रोग्रेस दिखाया है? ओके, हाउ कैन वी एक्नॉलेज द अचीवमेंट्स विद इन आवरसेल्फ जो ये सेक्युलर थॉट बोलता है भूल जाओ. सेक्युलर थॉट क्या बोलता है? धर्म को देखो मत बॉस, रहने दो रहने दो, तो कोई जरूरत नहीं. ऑदर सेज नहीं, हम सबके अंदर वो चीज है, उसने हमें प्रोग्रेस दिलाया है. हाउ कैन वी देन एक्नॉलेज कि यस, रिलीजन हैज गिवन अस समथिंग गुड? ये लोग तो आपको सोचने नहीं दे रहे. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन ऑथर इज पुटिंग बिफोर अस. एंड देन ही सेज कि अब मैं रीडर के सामने एक सवाल अब रखना चाहता हूं, मुझे प्लीज इसका जवाब ढूंढने में मदद करो. क्या है वो सवाल? लेट्स हाईलाइट इट. ऑथर सेज दिस,
कि हम क्यों फ्रीक्वेंटली ये बात भूल जाते हैं। कौन सी बात भाई? कि सेक्युलर वर्ल्ड ने भी बहुत डिस्ट्रक्शन मचाया है, उसके अंदर भी बहुत ताकत ताकत है ईविल क्रिएट करने की समाज में। हम ये चीज तो भूल जाते हैं। मतलब कि ऑथर इज सेइंग वी फॉरगेट दीज गाइस का निगेटिव एस्पेक्ट। वी फॉरगेट निगेटिविटी हियर, बट इसकी निगेटिविटी हमेशा याद रहेगी। कि धर्म के नाम पे कितना खून खराबा होता है। धर्म इज सो इविल, धर्म हैज सच अ स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू एंडोर्स इविल, व्हाई आर वी सो फियरफुल ऑफ दैट? एंड ऑन द अदर हैंड, लाइक हिपोक्रेट्स, वी एंड अप फॉरगेटिंग सेक्युलर थॉट प्रोसेस का भी कैपेसिटी टू एंडोर्स इविल। व्हाई इज दिस हैपनिंग? ऑथर सेज क्या ये इसलिए है दैट वी टुडे इन द 21st सेंचुरी आर स्टैंडिंग ऑन दिस साइड ऑफ द स्टोरी? इसलिए जो हम फॉलो करते हैं भाई उसकी निगेटिव चीजें मत बताओ, इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल। इट्स लाइक हमारे ऊपर वो गुनाह डाला जा रहा है, तो इसलिए हम दूसरों का, परायों का निगेटिव देखकर खुश हो जाते हैं। दैट इज व्हाट ऑथर हैज रेज्ड द क्वेश्चन ओवर हियर। आई हैव नॉट हाईलाइटेड इट, जस्ट एक्सप्लेन्ड इट टू यू ओरली। दिस इज व्हाट द ऑथर इज आस्किंग। ठीक है। एंड देन ही गोज ऑन टू लेवल हिज क्रिटिसिज्म इवन मोर स्ट्रांगली बाय सेइंग कि कितनी क्लैरिटी से मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि ये कंसेप्ट लाइक नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, कंट्रीज जो खड़ी की है आपने इन कंसेप्ट के दम पे, इन्होंने कितना कितना नुकसान पहुंचाया है। ओके, देर आर मिलियंस ऑफ नेशनलिस्ट all over the world, even in Europe and Japan, who will, I mean, who have paid an enormous price for their nationalist fervor. Even today, there are more Stalinists in India than in the former Soviet Union. ये एक बहुत बहुत sarcastic taunt है। Stalin was a dictator of Russia for 30 years. Very crazy guy. Crazy in the sense that some people say that he did a lot of good. There are also very undeniable crimes also committed by this guy. Fact of matter, he is responsible for millions of people getting killed, directly or indirectly. ठीक है? So there are people, author says, who are fans of these guys in India than in Russia itself. Okay, and these guys, they do not, you know, should not be defending his record of oppression and genocide. कि इतने millions को इसने मारा है, but no, these guys will do that. Okay, so here the author is leveling a very strong criticism, very strong thought process against secular thought. कि आपने धर्म से अलग होकर जो सोसाइटी, जो आइडियाज खड़े किए हैं, उन्होंने कौन सा बहुत बड़ा भला किया? स्टालिन जैसे डिक्टेटर्स तो देखे हैं भाई दुनिया ने, जिन्होंने मिलियंस को मार दिया। तो यू आर सेइंग दैट रिलीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ इविल दैट ग्रोज आउट ऑफ इट। वंस अगेन रिपीटिंग दैट पार्ट हियर, एंड यू से कि हाँ, यहाँ पर आप खड़े होकर मैनकाइंड इज स्टैंडिंग हियर। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ओके, मैनकाइंड ऑथर सेज स्टैंडिंग टुडे ऑन सेक्युलर वाले साइड। तो उस साइड से आप रिलीजन को देखकर रिलीजन के इविल को दबा के गाली दे सकते हो। ओके, you say that it looks like witchcraft, it is blood sacrifice type, and it is alien territory for you because we have never lived on this side of the story, other says, and that is why from here you can see all the evils इस चीज का and use a lot of घटिया words to describe इसका evil. But boss, why don't you look here itself in this own team and see कि आपने कितनी कीमत चुकाई है कुछ रैंडम से कंसेप्ट को खड़ा करने के लिए? Why don't you acknowledge these things that सेक्युलर स्टेट्स में भी जो आपके ये सेक्युलर डेस्पॉट्स है लाइक स्टालिन, इन्होंने कितने लोगों को मारा है सो दैट कंसेप्ट लाइक नेशन बिल्डिंग, स्टेट फॉर्मेशन, आपका ये प्रोग्रेस डेवलपमेंट के नाम पे, इन चीजों को तो आप एक्नॉलेज नहीं करते। इन चीजों को तो आप ऐसा वाइप कर देते हो अपने स्लेट से, और सिर्फ रिलीजन की गंदी बातें आपको दिख रही है। तो विद इन द सेकेंड पैराग्राफ एंड द थर्ड पैरा ऑल्सो, ऑथर बार बार एक ही कंसेप्ट
रिपीट कर रहा है इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट बहुत हो गया, सेक्युलर साइड ऑफ द टीम में भी बहुत सारे पाप हो चुके हैं, बहुत बुरी कीमत चुकाया है मैनकाइंड ने, इवन इन दैट साइड ऑफ द थॉट प्रोसेस ऑल्सो। सो आप ज्यादा हिपोक्रेसी मत करो कि सिर्फ रिलीजन को गाली देते रहते हो, दैट रिलीजन गिव्स बर्थ टू इविल, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है। ऑदर से दोनों साइड नुकसान हो चुका है बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एज आई मेंशन्ड एट द स्टार्ट, हिज स्टैंड इज वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। ही हैज सेड कि रिलीजन ने जो अचीव करके दिखाया है मैनकाइंड ने 3000 साल में, वो इसने अभी तक दूर दूर तक नहीं किया। So don't even compare these two things. He has made it clear, very clear at the start over here where I'm moving my laser. Okay. And then coming to the last third para here, let me clear up the screen a bit because we have a question coming for the last para. और थोड़ा सा पेचीदा है वहां पर ना, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑथर ने थोड़ा सा हैवी ड्यूटी यूज कर लिया और कुछ। व्हाट डज ही से कि देखो, धर्म का स्टडी करने वाले लोग जो है ना, वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव तरीके से करते। पीपल हु स्टडी रिलीजन, दे विल नॉट लुक एट रिलीजन इन एन इमोशनल मैनर, दे विल स्टडी इट फ्रॉम अ वेरी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, दे विल स्टडी इट फ्रॉम आउटसाइड। सो लेट्स से ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ रिलीजन, मतलब कि आप इसमें इमोशनली इन्वॉल्व, इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो रहे हो। तो कौन करता है ऐसी ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ रिलीजन? अदर से देयर आर अ लॉट ऑफ एकेडमिक्स हु डू दैट। कौन से टाइप के एकेडमिक्स है उसको अंडरलाइन करेंगे? एथनोग्राफर्स, सोशल हिस्टोरियंस, दे डू दैट। और इफ देर इज समबडी हु वांट्स टू डू अ पीएचडी इन द सेम फील्ड वगैरह, तो वो खुद का इस तरीके से रिलीजन का स्टडी करेगा। बेसिकली एकेडमिक वे ऑफ स्टडिंग रिलीजन। अच्छा ठीक है, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस? ऑथर से सेम तरीके से, सेम तरीके से यू हैव पीपल हु गेन फ्रॉम रिलीजन, मे बी पर्सनल गेन, गेन मे बी पॉलिटिकल गेन, ओके। उससे जो गेन करते हैं ना रिलीजन से ऐसे लोग, इमेजिन पॉलिटिशियंस आर यूजिंग रिलीजन फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल गेन्स। ये लोग भी रिलीजन का इसी तरीके से स्टडी करते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टडी, एज इफ दे आर एकेडमिक्स। एंड this is so surprising, and we are vaguely aware of these things, and that is why author says this is perhaps a reason, maybe a reason that we hate these guys, or that there is a section in the society which is very bitter towards these people। क्योंकि कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस है कि इन लोगों ने धर्म का यूज तो किया खुद के पर्सनल गेन से, बट नॉट इन एन इमोशनल और अ सेंटिमेंटल मैनर। ना ना ना, इन्होंने एकदम ऑब्जेक्टिव स्टडी किया है रिलीजन का और डिप्लॉय कर रहे हैं खुद के बेनिफिट के लिए। And who does this? Some very nice, some very acceptable people like academics. So a bit difficult to digest fact that somebody you don't like, somebody you say कि इसका achievement कितना गंदा है, he has done it the same way other good people seem to be doing। ठीक है, तो थोड़ा सा वेग है डिस्क्रिप्शन इन द लास्ट पैराग्राफ, बट आई होप दैट यू गॉट इट। वंस अगेन आई एम अंडरलाइनिंग दैट पार्ट, पार्ट ऑफ द बिटरनेस किसके प्रति? टुवर्ड्स द पॉलिटिकल वर्जन्स ऑफ इस्लाम, जुडाइज्म, हिंदुइज्म अप टू क्रिश्चियनिटी। मतलब कि जिन लोगों ने इन धर्म के दम पे पॉलिटिकल सिस्टम्स खड़े किए और आप उनके प्रति बहुत ज्यादा बिटर हो। व्हाई आर यू बिटर? बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ व्हाट थिंग, ऑफ दिस सिमिलैरिटी, बिकॉज यू आर अवेयर ऑफ दिस सिमिलैरिटी। ऐसा ऑथर का लास्ट पैराग्राफ में बोलना है, ठीक है। सो आई होप दैट दिस concepts, couple of concepts that we discussed in the passage are clear to you now. Let's go take a look at the questions. If you have any doubts, please drop them in the comment section. You can reach out to me on my mail ID as well. We can resolve any doubts that you might have. Okay. Chalo then. Let's go take a look at the first question. Author uses the phrase in retrospect in first para. Why? ठीक है जी, रेट्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा वर्ड है। एक एग्जांपल के साथ में आपको समझाता हूँ। रेट्रोस्पेक्ट जनरली कब यूज होता है? लेट्स से दिस इज अ टाइमलाइन, दिस इज नाउ और टुडे, और ये पास्ट में कोई तो एक टाइम पीरियड है जिसको आप देख रहे हो आज, जिसको आप आज एक बातचीत में रेफर कर रहे हो। एग्जाम्पल, लेट से आज से 4 साल पहले आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसीजन दिया फॉर योर ग्रेजुएशन, ओके।
and let's say it turned out to be a really good discussion. You have graduated from a good college, now preparing for CAT exam in the hope of a good career ahead, whatever. So if you're happy with the discussion, with the decision you made 4 years ago, so you can say, in retrospect, I made a good decision. या फिर in retrospect, it was a good decision to take admission in so and so college. मतलब कि पीछे देखते हुए, कहां से, यहां से, meaning that you are looking at the past from now, from a particular perspective, कि आज के point of view से, आज के point of view से past कैसा दिखता है. That is meant by retrospect. And the same usage is given over here in the first para also. Highlighting it for you. In retrospect. That investment, कौन सा, ये 3,000 साल तक जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, आज खड़े रहकर आज के तारीख से हम पीछे मुड़कर देखें तो वी इट बिकम्स क्लियर कि हाँ, दिस वाज नॉट यूनिफॉर्मली वाइज और यूनिफॉर्मली क्रिएटिव. थोड़ा 19-20 काम था, कभी कभार अच्छा, कभी थोड़ा सा बुरा भी हो गया. That is what the author is saying. And which option confirms this? Answer option D. The review or contemplation of the past from a different perspective. कि आप इतिहास को देख रहे हो, पास्ट को देख रहे हो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली कोई एक vantage पॉइंट है. Other options can be rejected very easily because they have illogical words here and there. Ability to look inwards. Wait, what? नो, नो, इनवर्ड्स नहीं, बैकवर्ड्स, इन द पास्ट होना चाहिए. कुछ तो फिर आसपास तो भी हम भटकते थे मीनिंग के. सो नहीं है तो बाय बाय. बी, एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट. नहीं भाई, फ्यूचर वाला कोई भी एलिमेंट रेट्रोस्पेक्ट में नहीं आता है. ओके, बाय द वे, गोइंग बैक टू ऑप्शन ए, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को शायद अगर इनवर्ड से कंफ्यूजन हुआ होगा, तो द वर्ड दैट माइट बी प्लेइंग इन द बैकग्राउंड ऑफ योर माइंड इज इंट्रोस्पेक्ट. ओके, दिस इज नॉट इंट्रोस्पेक्ट, दिस इज रेट्रोस्पेक्ट. दो अलग चीजें हैं. इंट्रोस्पेक्ट मतलब हाँ, एबिलिटी टू लुक इनवर्ड्स. ओके, आई डिड नॉट रियलाइज दिस थिंग अभी तक. इन दिस मोमेंट आई हैड अ सडन रियलाइजेशन, दैट इज बाय गिविंग यू दिस वर्ड. लेट्स गो टू थर्ड ऑप्शन. कंपैरिजन ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट साउंड्स अ बिट डाइसी. पास्ट तो आया है, बट कंपैरिजन नहीं करते हैं हम जनरली, नॉट नेसेसरी. We just look at the past. Anyway, आगे, to resolve contentious issues. No way at all. This is way too specific. Contentious मतलब झगड़ालू, controversial, जिसके ऊपर बहुत डिबेट डिस्कशन हो सकता है. तो भाई ऐसे पेचीदा मुद्दों को आपको रिजॉल्व करने के लिए आप कंपैरिजन करते हो पास्ट का और प्रेजेंट. व्हाई? एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विद द वर्ड रेट्रोस्पेक्ट. रेट्रोस्पेक्ट बड़ा ही सीधा साधा सिंपल वर्ड है. ऑप्शन सी जितना भारी भरकम. Okay. So with that, I hope that you understood the question and the answer. Answer is of course the last option, option D. If any doubts, please drop them in the comment section. Glad to help you out. Second, all of the following can be deduced from the passage except. अच्छा जी, मतलब 3 चीजें आपको in line with passage मिलेगी, एक नहीं मिलेगी. वो ही आपका आंसर है. मतलब कि एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो पैसेज का या ऑथर का शायद दुश्मन बन के बैठा हुआ है. वेरी क्लियर कट पहला ही ऑप्शन निकल जाता है एज ए आंसर. देर आर मोर इविल्स अराइजिंग फ्रॉम रिलीजन दैन फ्रॉम सेक्युलरिज्म. ऑथर डंडे लेके भागेगा आपके पीछे, आप उसको ये बोल के बताओ. ठीक है, बिकॉज इफ यू रिमेंबर दैट बेसिक डायग्राम दैट वी ड्रू, उसके अंदर क्लियर कट बोला है ऑथर ने, तुम दूर दूर तक के कंपैरिजन नहीं कर सकते रिलीजन ने जो अचीव करके दिखाया है. हिज his stand with respect to religion and it being superior to secularism is very clear. Or option A is flying in his space. So option A definitely becomes the answer because it is not in line with the passage. Other three very straightforward, in line with what the author is saying. You can go through those and you will realize that yes, ये सारे के सारे author के agreement. Okay. Still, if any doubts, drop them in the comment section. I'll help you. Okay. Third, which of the following can be understood from the passage? Sort of उल्टा पिछले क्वेश्चन का. पिछले क्वेश्चन में we were finding what is not understood from passage, और यहाँ पूछा है can be understood, meaning that you are hunting for one option which is in line with the author. Okay, चलो क्या बोला है, एक एक ऑप्शन एनालाइज करेंगे. ड्यू टू प्रोग्रेस बाय सेक्युलरिज्म
इट इज गुड टू वाइप क्लीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन टू सिविलाइजेशन। बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड पैरा फर्स्ट क्वेश्चन ही वही है, एंड इट इज वेरी रेटोरिक। ऑथर ने यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया कि सेक्युलरिज्म के नाद में, सेक्युलरिज्म के खुमार में, विल यू फॉरगेट all the achievements that we as mankind did because of religion? Hell no. So A, bye bye. B, investment of human cognitive and affective resources in secular public life has always been, oh my god, गया यहाँ पे ही गया ये ऑप्शन। बी क्या कहता है कि इंसान ने जो इन्वेस्टमेंट किया ना सेक्युलरिज्म में, विच इज ऑफ कोर्स वेरी रीसेंट, वेरी रीसेंट, ये हमेशा से एकदम खूबसूरत रहा है, एकदम कॉन्ट्रीब्यूटिव रहा है हमारी प्रोग्रेस में, समथिंग कंप्लीटली कंप्लीटली पॉजिटिव। बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स गो टू दिस पार्ट। ऑथर हैज क्लियर कट मेंशन कि सेक्युलर पब्लिक लाइफ, सेक्युलरिज्म हैज ऑफन बीन स्पेक्टेकुलरली डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। अच्छा किया है बट बहुत तबाही भी मचाई है। सो अगर ऐसा है तो आप ऑलवेज बिल्कुल नहीं बोल सकते। ओके, सो इमीडिएटली नॉट इन लाइन विद द ऑथर, बाय बाय। सी, एथनो रिलीजियस नेशनलिस्ट हु यूज रिलीजन एज अ पाथवे टू पावर। भाई साहब इतना बड़ा बड़ा लिखा है। कौन है ये बंदे लोग जिसको हमने डिस्कस किया था ना पिछले वो ट्री डायग्राम में? पीपल हु गेन फ्रॉम रिलीजन, वो लोग। ठीक है, रेफर टू दैट नोट दैट वी मेड, पीपल हु गेन फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, व्हाट अबाउट दोस? they would use the same processes, religious or psychological processes, that ethnographers would use. Definitely वो similarity academics लोगों के साथ में। okay, clear cut passage में लिखा है they would use the same set of psychological mechanisms that we use when we study religion as ethnographers or as social historians. The last, very last sentence makes option C clear. This is in agreement with what the author says, that is why it becomes the answer. तो इसलिए नन ऑफ द अबाव की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। यू कैन सेफली रिजेक्ट इट। लास्ट ऑप्शन सी इज वेरी मच इन लाइन विथ व्हाट द ऑथर इज सेइंग। ओके, so I hope that you got this question. Not very difficult, fairly straightforward. If your idea is clear from after reading the passage, then as you can see, the options are actually very easily eliminated or selected depending on the wording. चलो आखिरी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, डेटाबेस, सुपर सिंपल। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मैनकाइंड हैज रिसेंटली इन्वेस्टेड हमारे मेंटल फैकल्टीज इनटू समथिंग। बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेट्स गो रिविजिट फर्स्ट पैरा। रिलेटिवली रीसेंट क्या चीज? सेक्युलर स्टेट क्राफ्ट एंड सेक्युलर पब्लिक लाइफ। सेक्युलर स्टेट क्राफ्ट एंड सेक्युलर पब्लिक लाइफ, ए एंड बी बोथ। सो वन ऑफ दोज रेयर केसेस वेर यू आर गोइंग ओल्ड स्कूल विद द ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन थोड़े कम देखने मिलते हैं कैट एग्जाम में। अगर दिख जाए तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, शायद वो आंसर बन सकता है। ठीक है, तो चलो देन, आई होप दैट यू अंडरस्टूड द पैसेज, द क्वेश्चंस आल्सो। इफ यू आर डाउटफुल in any part, please drop them in the comment section. You can refer to the timestamp, you can refer so and so question mein so and so option ka doubt, so I can help you specifically with the doubt that you might have. Okay, thanks a lot for watching. If you like our content, please like, share, subscribe. Spread the word to your other friends, aspirants who might be preparing for the exam. It works as a great encouragement for me to develop more and more relevant content. Till then, once again, thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.